अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमाला, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। आज के एपिसोड में मैं आपको जिस हीरो से मिलाने जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको उनसे मिलाने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं उनसे खुद बात करने के लिए और मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स वेलकम कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट रबाब रिजवी। आई विल लेट हर स्पीक फॉर हरसेल्फ। My name is Rabab Rizvi. I'm a psychiatrist. मैंने मेडिकल स्कूल रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है and I did my psychiatry training at Baylor in Houston. I was an assistant professor there, and since the last 10 years, I have been working as a telepsychiatrist. I work online, but I do emergency psychiatry, which means I see patients in the emergency departments and on the medical floors. रबाब, मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग योर टाइम आउट। Oh no, thank you. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं सबको भी बता रही थी व्यूअर्स को कि मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली हुई थी और मैं एक्साइटेड भी बहुत थी और नर्वस भी हूँ थोड़ी सी कि व्हाट टू आस्क एंड व्हाट नॉट टू आस्क। ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट का डिफरेंस। Sure. Psychiatry is you go to medical school and then you do your residency in psychiatry. So what you do is you can do psychotherapy, you're trained in it, but you can prescribe medications. Okay. और psychology में ये है कि आप अपना masters करते हैं. A lot of people do their PhD. Okay. So you do psychotherapy, but you don't prescribe medications. And of course, they would have more experience with different kinds of psychotherapy. ओके, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको साइकोलॉजी के लिए आपको स्कूल मेड स्कूल नहीं जाना होता या You don't go to med school. okay, so you take your major as a psychology, right? That's what you do when you are in grad school or undergrad. में आप psychology पढ़ते हो। Right. Interesting. Okay. तो अच्छा मुझे बताओ पहले अपने बारे में कि आपने कब सोचा कि आपने इसी फील्ड में आना है और this is what you want to do for rest of your life? I actually decided very early on. I would say when I was 11, I knew that I'm going to be a mental health professional. Yes. I know there are different ways. Like some people take a long time. For me, it was very clear this is what I want to do. Okay. And in fact, initially I was more interested in becoming a psychologist. Okay. But then I'm also very data-driven, and I'm very interested in medicine as well. So I know this is perfect. Like I feel like psychiatry is the perfect marriage between art and science. So when I went to med school, I only went to med school for becoming a psychiatrist. अच्छा। I knew I don't want to do anything else. और ये हम कौन सी ईयर की बात करें? So मैंने graduate किया है med school से, gosh, it was such a long time ago, 2001, and I started in 1996. That's when I started med school. ओके, तो क्योंकि बैक देन लाइक अगर हम 90s की बात करें तो इतना कोई इसमें मेंटल हेल्थ इतनी कॉमन चीज़ नहीं थी जी, टॉक जी। अबाउट। तो हाउ डिड यू डिसाइडेड बैक देन कि मुझे यही पढ़ना है? I'm a reader. I like reading, and I think when I was 11, I read a story about a woman dealing with an eating disorder. And I was thinking the brain is such a powerful thing because if there's something happening with your brain, nothing else can go right. So I thought that. So I was like, I feel like that may be my bias. I feel like this is the most powerful organ in our body, and so that's when I got more interested in it. और मैंने उस age पे भी, even in my teens, I realized that next century is going to be the century of the brain. I could just see that. और फिर like you know so many exciting things are happening because अगर आप psychiatry को देखें तो relatively there's a lot more room for research. So many exciting things are happening. बिल्कुल बिल्कुल। So it's a good time to be in this field. डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मुझे याद है कि जैसे पुराने टाइम पे वो 90s की बात कर लें, पुराना टाइम तो वो पुराना ही लगता है, तो वो वी आर फ्रॉम 90s, ठीक है। तो मगर उस टाइम पे मेंटल हेल्थ और जितना हम अब एक्सपोजर हमें है चीज़ों definitely. का, उस टाइम पर इतना नहीं था। और अगेन कि ना हम ज़्यादा बात करते थे उस बात रखी जाती थी। राइट, That's कोई true. मतलब प्रॉब्ली वो टैबू था टू टॉक अबाउट कि अगर हम अपनी कोई मेंटल इलनेस की बात भी करें तो nobody was ready to listen back then कि किसी हर कोई उसको ऐसे कहता था कि नहीं, यू नो नमाज पढ़ो या यू नो मेडिटेट करो। तो मेडिटेशन भी शायद नहीं थी राइट वर्ड कि उस टाइम पर इतना। मगर अगेन कि यू नो इट्स जस्ट द फेस, probably you'll be fine, just you know stay happy and ये वो। तो उस टाइम पर अगर आपने डिसाइड किया तो definitely you'll be thinking way ahead. I hope so, and I enjoy doing it. अगर मुझे दोबारा करने का चांस मिले या अगर मुझे हो गया दोबारा करना, I would still choose the same thing. Wow. But I do want to say that doesn't mean कि आप के लिए वो काम आसान हो जाता है just because you're passionate about it. And you know, a lot of my friends, they discovered very late what they wanted to do.
I think मैं emphasize ये करना चाह रही हूँ कि there is not one way of getting where you eventually go. डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है Sure. कि अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने जब अपनी पढ़ाई कर ली खत्म तो फिर आप यहाँ यूएस मूव कर गए और Yeah, actually, when I got married, that which was right after med school, तो my husband was working in Dubai. Okay. और मैंने वहाँ जाके बहुत जल्दी realize किया कि that is going to be a dead end for me because if I go there as a specialist, there are opportunities for me, like not for getting trained. Yeah. तो US move होने की decision का basis ये था कि I wanted to Pursue. train further. Okay. तो इसलिए फिर हम US move हुए और of course it was a difficult time when I was going in for my residency interviews. I was pregnant for the first time. But you know, you have to go all in and you have to make that decision as a family. तो उसके लिए of course alhamdulillah I had a lot of support. Everybody needs support. Yeah. लेकिन it was not easy but हो गया. हो गया माशाल्लाह ओके तो आप जब यहाँ आई तो you were pregnant or you had your first kid here in US I had my first kid here. I was pregnant during the interviews. अच्छा, okay. And my son was 6 weeks old when I started. ओके वाओ तो कितना मुश्किल हुआ जब तब आपने शुरू किया है इसको मुश्किल ज़्यादा इसलिए हुआ कि my husband was in Houston and I for my intern year I was in Springfield, Illinois, and then I got a transfer to Baylor. अच्छा. So that time I would say was difficult. लेकिन again you have to make decisions. फिर बेटे को दादी के पास भेजा लाहौर में. So everybody was very supportive. It's a family effort. डेफिनेटली तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि I know कि कई लोगों के लिए इतनी opportunity नहीं मिलती even if they want to because someone may not have a supportive spouse, somebody may have a special needs kid. तो उसके लिए I think यही बात है कि be sincere to yourselves, recognize कि if you have drive, if you have ambition, it's okay, own it up as a woman, own it up. क्योंकि when people ask me about it, मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है आप जो भी करो, if you want to be a homemaker, जो भी करना है आराम से करें, but be okay with yourself. उसमें एक एग्जांपल मैं ये दूंगी कि like you know जब गाड़ी खराब होती है तो इंजन से आवाज़ें बहुत आती हैं. बिल्कुल And I feel like कि एक इंसान अगर बार-बार करे ना कि जी मैंने इससे किया तो it's almost like you know they are trying to justify it to themselves. So I think it's very important for us to self-reflect कि हम क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में क्योंकि आपको भी पता है कि माशाल्लाह you're so successful, everything has a price. बिल्कुल तो बिल्कुल वो मतलब you cannot be making gourmet meals and working. It's like you cannot be that superwoman. So बिल्कुल एक वक्त में आप मैक्सिमम 3 प्रायोरिटी से ज्यादा नहीं कर सकते. नहीं कर सकते चाहे हम जितने मर्जी क्लेम कर लें कि हम मल्टीटास्क Exactly. करें So बट स्टिल देयर लाइक यू नो लिमिट हर एक चीज की एक लिमिट है जी बिल्कुल. तो वो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज, राइट? जस्ट दैट बैलेंसिंग एक्ट. बिल्कुल सही बात है. और वही टाइम्स आप मतलब एज अ मदर स्पेशली आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ा होता है जी. कि टुवर्ड्स योर करियर एंड देन बच्चों की यू नो मदरहुड Right. बच्चों की अपब्रिंगिंग एंड देन एट द सेम Absolutely. टाइम हस्बैंड एंड देन हाउस की Right. आपकी होती है रिस्पांसिबिलिटीज एंड बच्चों का खाना भी इज Right. लाइक यू नो मोर ऑफ अ मॉम्स रिस्पांसिबिलिटी कि अगर बच्चा नहीं खा रहा एवरिथिंग तो- इज अ मॉम्स है ना रिस्पांसिबिलिटी. हाँ जितना मर्जी आप माशाल्लाह जितना भी आप कह Right. लो कि लाइक यू नो हाँ. सब होते हैं हस्बैंड्स आर लाइक यू नो फादर्स एंड बच्चों का ख्याल कर रहे हैं Right. बट स्टिल अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ नहीं सुकून से बैठ सकती Exactly. राइट कि चाहे जितना Exactly. मर्जी वो कह रही हो कि हाँ ठीक है अगर एक खाना जैसे मुझे मैं भी अब यू नो इस टाइम पर आ गई मुझे लगता है कि एक खाना नहीं भी खाएगा बस बच्चे बड़े कुछ नहीं होंगे होगा. कि कुछ नहीं Exactly. होगा मगर जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि अगर खाना नहीं खाएगा तो यू नो मैं भी नहीं खा सकती Right. Yes. Even बड़े भी हो जाएं, before coming to this place, I was like, oh my God, did my son have a snack or not? हाँ Like, he's हाँ 16 एग्जैक्टली now, the बिल्कुल younger सही one. बात है हाँ बिल्कुल सही बात है दैट्स इंटरेस्टिंग चलो अच्छा मुझे अब ये बताओ कि आपने यू जस्ट स्टार्टेड योर प्रैक्टिस इन 2002 So residency training मेरी ख़त्म हुई 2006 में मैंने शुरू की. 2010 में I graduated. ओके और उसके बाद फिर मैंने बेलर में VA हॉस्पिटल में मैंने काम शुरू किया और फिर 10 years से मैं टेलीसाइकाइट्री कर रही हूँ, which I started in 2013. So 2000. so basically 11 years हो गए. Not अच्छा वाह माशाल्लाह तो 11 इयर्स लेट्स से अगर हम वापस जाते हैं 2012 13. 2013 से लेके अभी 2024 तक आपको कितना डिफरेंस लगा लोगों में और उनकी मेंटल उसके अंदर के स्टेबिलिटी के अंदर कितना डिफरेंस लग रहा है आपको So what I would say is that some of the changes are unfortunate, what I'm seeing. Basically, you know, with the pandemic, with everything that's happening, stress or anxiety disorders, depression, काफी increase हो रहा है. So I would say, unfortunately, like I'm very busy, and I want to talk about the South Asian community.
स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को लें और देखें तो आई थिंक वी आर स्टिल वेरी मच बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्टेंस फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. उसके बारे में हम डील कैसे करते हैं एज अ फैमिली. देयर इज अ लॉट टू बी डन. क्योंकि मैं भी किसी का इंटरव्यू देख रही थी थोड़े दिन पहले, तो वो इसी मेंटल हेल्थ पे बात हो रही थी. वो पाकिस्तानी के बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की नेशन के साथ जो अभी करंट सिनारियो है, मतलब वो कुछ भी सही नहीं हो रहा वहाँ, बट पीपल आर स्टिल हैप्पी. Nation is still happy. They are still like going on with their lives and सारी छोटी मोटी खुशियाँ जो भी हैं उनकी ज़िंदगी में वो enjoy करें. तो क्या ऐसा है कि हमारे पास शायद अवेयरनेस नहीं है इस बात की, मेंटल इलनेस की, या हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है और प्रॉब्ली हम या वी आर नॉट वेल्दी इनफ टू गो एंड सीक हेल्प फॉर दैट. आई एम नॉट श्योर आई एग्री विद पाकिस्तान में पीपल आर स्टिल एंजॉयिंग देमसेल्व्स, बिकॉज उसमें ये भी बात है ना कि हाउ इज दैट मैनिफेस्टिंग, कि अगर कल्चरली यही एक्सेप्टेबल है कि आप अपने मेंटल हेल्थ सिम्टम्स भी जैसा अगर कोई डिप्रेस है लेकिन उसके लिए कहना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो कहे कि जी मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे कमर में दर्द हो रही है, तो यही एक्सेप्टेबल है, तो वो ऐसे एक्सप्रेस होगा. दैट डजंट मीन दैट इशू इज़ नॉट देयर. और दूसरी बात ये कि एक चीज़ को कोई डिनाइल में है पूरी फैमिली कि, तो वो दैट डजंट मीन कि वो चीज़ हो नहीं रही. तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दैट डजंट मीन कि वो है नहीं है द प्रेवलेंस. क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या पहले थे. आई थिंक हमेशा से थे. कई चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के, लेकिन ओवरऑल all of us deal with a lot of issues. अगर आप किसी भी population को ले लें उसमें you have similar rates of a lot of disorders. It's there. तो ये बताओ मुझे कि जो ये से सुसाइडल रेट है जो मैं देख रही थी अपनी, मैं थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी रिसर्च करी थी कि बहुत ऊपर चला गया है. तो इसका क्या रीज़न है? और आपने के पास आप तो इतने लोगों से बात करती होगी, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई एक सर्टन चीज़ है जो बहुत ट्रिगर कर रही है इस चीज़ को, या व्हाट्स गोइंग ऑन? Social isolation has increased. We apparently are more connected but not really. जो असल connection है, जो like face to face interactions, people don't feel as supported. So वो काफ़ी factors हैं उसमें. In fact it's alarming कि Muslim community में US में rate काफ़ी increase हो रहा है. We like to think कि नहीं है, लेकिन again we have to, because again there's a lot of stigma, there are a lot of issues going on. So definitely, so during the pandemic, I have started seeing a lot more kids. और वो US में surprisingly that rate is not coming down. So I mean there was a difference. Like कई दफ़ा मैं emergency departments में एक pattern note करती हूँ, then I look it up and I'm like, oh wow, this is actually happening. हाँ, तो अच्छा ये बताओ मुझे कि कब ऐसे लगता है कि जैसे अगर लाइक कि अब मुझे साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा? बिकॉज अगेन कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर देते हैं. जैसे मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मैं भी अगेन के अभी बहुत बिजी चल रहा है, छोटी मोटी चीज़ों के इश्यूज़, लाइफ के मसले हैं ये वो, तो मैं बहुत ही अपने रेगुलर चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास. और अब सीनिंगली मैं बहुत ही लाइक ओके, हैप्पी, फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ, आई एम वर्किंग आउट एटलीस्ट 3 to 4 times a week एंड ऑल. देखने में सब कुछ perfect, right? ठीक है, everything is like बच्चे fine, husband fine, me fine, everything is surroundings are perfect, ठीक है. तो मैं डॉक्टर के पास गई एंड ऐसे ही उससे बात होती रही, तो मैंने उसको बोला कि आई एम हैविंग लाइक ये sleepless nights, मुझे नींद नहीं आती, मैं नींद उठती जागती है ये वो. तो ऐसे वो बातें करने लगी. तो उसने मुझसे पूछा कि do you feel sad? तो मैंने कहा या. और बिल्कुल अब मैं ऑनेस्टली बिलीव मी कि मैं बिल्कुल 100% मेरा मूड था. कोई मैं डाउन नहीं थी, कोई वो नहीं चल रहे थे कि मुझे लग रहा हो कि जी मेरे वो मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं था. मैं बिल्कुल सही थी मैं. तो उसने मुझसे ऐसे ही लाइक बात करते करते डू यू फील सैड, डू यू फील लाइक क्राइंग, और मैं कह रही हूँ कि या. एंड ये कहते कहते मेरी आंखों के अंदर मोटे मोटे आंसू थे और ना नहीं पता कि आप अनकंट्रोलेबली ना मैं रोने शुरू हो गई. तो वो घबरा गई. उसने कहा पता नहीं कितनी ये बेचारी डिस्टर्ब है एंड ऑल. तो मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से एकदम से मुझे आंसू आ गए कि प्रॉब्ली आप बैठ के सोचते नहीं है कि आपके साथ कोई परेशानी है, या आप चीज़ों का आप इतने लाइफ की रेगुलर उसमें जा रहे होते हैं कि आप लाइट भी नहीं डालना चाहते वहाँ पर, कि आप इतने बिजी होते हैं अपने डेली रूटीन और डेली वर्क काम के साथ एंड ऑल, तो आप लाइट नहीं डालते. मगर उसने मुझे राइट अवे उसने कहा कि नहीं, आई थिंक यू शुड गो एंड कंसल्ट समबडी एंड जाके साइकोलॉजिस्ट से मिल लो और मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट सेटअप कर देती हूँ, ये वो. तो मैंने उस वक्त तो मैंने कह दिया, बिकॉज अगेन कि वो दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि पता नहीं कितना मुझे वो हो रहा है.
Right. फिर उसके मैं घर आई तो अगेन आप आते हैं तो आप ग्रेटफुल होते हैं, आप थैंकफुल होते हैं हर चीज़ के अराउंड ये वो। अपने माइंड से मैंने थोड़ा बहुत खेलना शुरू किया एंड अगेन वापस से सब कुछ तो भूल गया, सब कुछ याद भी नहीं रहा। अपॉइंटमेंट आई भी, मैंने उसको कैंसिल भी कर दिया, लाइक तो इसमें दो चीजें हैं, लाइक द काइंड ऑफ वर्क आई डू दैट्स वेरी एक्यूट, दैट्स क्राइसिस वर्क। वो तो ये ना कि सारों को नजर आएगा कि लाइक दिस पर्सन नीड्स हेल्प लाइक राइट अवे इमीडिएटली। I think what you're talking about is कि as a person जो we look at functionality, especially in the Desi population. If somebody asks me and I tell them that the fact that you're asking me about this probably means that you can benefit. लेकिन जब तक psychotherapy की बात है, I think anybody can benefit from it. Anybody. Even अगर आप सोचें, even a supposedly highly functional person can benefit from it. मतलब like you need to, अगर और कुछ नहीं तो you need to, this is a place for self-reflection, to process trauma. A lot of people have chronic traumas. और वो unprocessed रहता है, it affects their life. So even that can be a good avenue. तो मुझे प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट करो उसको कि व्हाट इज क्रॉनिक ट्रॉमा, क्या होता है उसमें, ये क्या हो सकता है? Chronic trauma से मेरी मुराद ये है कि all of us need to assess कि जो हमारे long term events हैं past में, how they affected us, like why we are the way we are, and कई दफ़ा जो maladaptive mechanisms नज़र आते हैं लोगों के, just that recognition कि ये किस वजह से है and what can be done about it. That's the most important key. समझना काफ़ी नहीं है, पहले तो ये कि आपने प्रॉब्लम को मानना है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, फिर उसको एक्सप्लोर करना है, फिर what can be done about it. क्योंकि एक और बात जो मैंने देखी है कि आजकल थेरेपी इज़ मोर एक्सेप्टेबल, तो कई लोगों ने ये भी कर लिया कि आई एम इन थेरेपी, दैट्स नॉट गुड इनफ। क्योंकि होता है ना कि वो उसको भी एज एन एक्सक्यूज यूज़ कर ली कि like I'm doing enough. That by itself doesn't mean anything unless you do something about it. That's right, कि ये सिर्फ थेरेपिस्ट का ही काम नहीं है आपको उस चीज से निकालना, आपको भी कुछ ना कुछ रेफर करना। थेरेपिस्ट का काम ही नहीं, वो तो गाइड करेगा। और another point जो what you brought up, मेरा ख्याल है कि South Asian community में that I wanted to emphasize on is the lack of focus on preventive care. One thing I do want to share about myself is that during the pandemic, I was diagnosed with breast cancer. Okay. I'm doing well, alhamdulillah. But the whole thing is that South Asian community में screenings time पे नहीं लोग करते हैं. बिल्कुल. So it's very important to get those things done on time. अगर फिर भी कुछ नहीं होता या अनफॉर्चुनेटली नहीं डिटेक्ट होता, दैट्स अनदर स्टोरी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी तरफ से वी हैव टू मेक एन एफर्ट कि हम किसी तरह अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ लॉट ऑफ टाइम, जैसा फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज डायबिटिक, तो यस एक्सरसाइजिंग इज गुड, यस माइंडफुलनेस इज गुड, ऑल ऑफ दैट इज गुड, लेकिन हो सकता है उनको कई दफ़ा इंसुलिन की भी ज़रूरत हो। बिल्कुल। तो द सेम थिंग विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, कि जस्ट saying कि जी मैं spiritually बहुत involved हूँ या मैं physically exercise like that good sleep hygiene methods, that may not be enough at times. तो again it's difficult to decide, क्योंकि again जैसा में बात हो रही थी कि crisis में तो आसान है decide करना, दूसरों को भी नजर आ रहा है, खुद भी नजर आ रहा है, उसमें भी unfortunately South Asian community में नहीं बात करना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं उसके साथ डील करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो और ये बताओ कि डिप्रेशन और कोई क्रॉनिक डिप्रेशन भी होता है या बस एक ही डिप्रेशन होता है? Depression is of many kinds. Like some people have symptoms long-term basis पे, chronic basis पे, sometimes short-term होता है. Rule of the thumb is कि one episode you do need treatment at least 6 to 9 months. Around 2 episodes for around 2 years. 3 or more episodes, then you need to be on treatment lifelong. और उस पर भी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी when can I stop taking my medication, and especially bipolar disorder वगैरह में when they start feeling better. तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जिससे आपने हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए पूरी उम्र दवाई लेनी है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए डेली लेनी है, ये नहीं कि एक दिन ली एक दिन नहीं ली। मोस्ट ऑफ द इलनेसेस, मैं सिर्फ साइकाट्री की बात नहीं कर रही, मोर देन 80% ऑफ द इलनेसेस वी डील विद आर क्रॉनिक, सो वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर इट। और कई लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट मेडिकेशंस डू हेल्प, साइकोथेरेपी डज हेल्प। सो इफ नथिंग एल्स, इफ पीपल कैन टेक अवे फ्रॉम दिस दैट देयर इज हेल्प आउट देयर एंड देयर आर सॉल्यूशंस फॉर थिंग्स। But there's no magic tricks. There's especially हमारी फील्ड में कोई ये एकदम से कोई immediate result नहीं है. It's a lot of effort that. और ये long term ही है कि अगर आप if you are like for some things no, for sometimes no. मतलब कई दफ़ा acute stress reactions भी होते हैं which go away. लेकिन most of the times yes.
ओके, तो मगर जैसे डिप्रेशन है तो ये कभी भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो सकता है अगर Of course. हाँ, अच्छा And for different reasons, vitamin deficiency reason हो सकती अच्छा है. ये भी हो सकता है Of course. और औरतों के लिए स्पेशली लाइक यू नो डिफरेंट फेजेस प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है प्रेगनेंसी इज अ रिस्क फैक्टर बाय इटसेल्फ पोस्टपार्टम पीरियड इज अ वेरी वनरेबल टाइम बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जेनेटिक टेंडेंसीज हो सकती हैं एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स तो ज़रूरी स्पेशली जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि जी सारा कुछ तो ठीक है क्या तकलीफ है राइट बिल्कुल दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो नहीं मगर ये बताओ कि ये क्या इनहेरिटेंस भी हो सकती है या नहीं जी genetics होता है tendency Okay. yes लेकिन again having said that there's so much you can do जिसका आपका for example diabetes का risk है genetic but there's so much you can do so again that is why it is important to know your family history and just be aware कि आपके क्या risk factors हैं आप उसको कैसे modify कर सकते हैं मगर फिर अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि पहले तो हमारे टाइम मतलब पेरेंट्स और या उनके भी पेरेंट्स तो अवेयर ही नहीं थे ना मेंटल इलनेस से या अगर वो था भी उनको कोई डिप्रेशन या अगर आपको लग भी रहा है कि आपने इनहेरिटेंट किया है वो तो कैसे हाउ विल यू फिगर आउट दैट कि आपको पता ही नहीं है कि यू नो कि मेरी माँ अम्मी या फिर उनकी भी अम्मी कभी दे वर लाइक ever had this that is so important कि हम अपने बच्चों से भी बात करें and just trying to be aware about the family history तो मगर बच्चों के लिए इतना आसान होता है बच्चे डिस्कस करें अगर कि जैसे हम वो ज्ञान के वैसे देखा तो बच्चे बैठे हुए हम सब बातें करें सब कुछ तो मगर एक सर्टन चीज़ें होती हैं जो बच्चे भी प्रॉब्ली इतने कंफर्टेबल नहीं होते होंगे बात करने इतने अपने पेरेंट्स से स्पेशली और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आई डोंट वांट टू स्ट्रेस देम आउट ऑन एनीथिंग यू नो मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रही या करना चाह रहा तो वो फिर उस तरह के सिनेरियो में आप कैसे यू नो आपको you mean talking to them about the risk factors for the family या नो आई एम सेइंग कि अगर जैसे कभी ये भी होता है ना कि बच्चे भी हैं तो बच्चे भी दे डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग दो सब कुछ दे लाइक वेरी सपोर्टिव सिस्टम एंड एवरीथिंग सब कुछ है मगर दे डोंट feel comfortable talking to their parents about this कि कहीं परेशान ना हो जाए कि मैं कहूँ कि you know कि I'm having this kind of feelings या मुझे कोई ऐसी लग रहा है और I feel sad sometimes and I feel like crying या मेरी कोई dark place में मैं चला जाती हूँ you know तो इस किस्म की और वो पेरेंट्स से बात नहीं करना चाह रहे तो फिर उस किस्म के सिनेरियो में मतलब पेरेंट्स की क्या कैसे just being there being supportive and I think शुरू से अगर हम अपनी families में encourage करें कि it's okay to talk about emotions and again with the balancing act and a lot of times खास तौर पे मदर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा मुझे सब कुछ बताए वो नहीं बता सकता you may not be the right person and that is again you know deciding कि where they need professional help तो आप उनको offer कर सकते हैं कि like you know what about therapy what about this and just making sure that communication is the key communication is the key और especially in immigrant families वो जो एक expectations होती हैं कि ये ऐसे ही होना है that rigidity I think women overall are better about it हम लोग बात भी कर लेते हैं और हम लोग flexible भी ज़्यादा होते हैं overall especially when it comes to kids Okay. I think it's very important to learn that process and I think women will lead the way in the South Asian community and women are leading the way बिल्कुल बिल्कुल और बताओ मुझे कि एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी हाउ इट फील्स लाइक इफ यू आर एंग्शियस और कैसे वो तो कॉमन बातें तो हैं कि यू आर लाइक यू नो आप एंग्शियस फील कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है आप आइदर यू आर वॉकिंग और यू नो आप हर चीज़ में रश कर रहे हैं ये वो और क्या साइंस होते हैं एंग्जाइटी again there are different kinds of anxiety it can be like acute anxiety सब panic attacks वगैरह होते हैं generalized anxiety you feeling anxious throughout so there are different kinds of anxiety उनकी कैसे आपने डील करना है वो भी फर्क होता है coping skills के जो severe acute anxiety जो एकदम से उसके लिए क्या आपने डील करना है breathing exercises होती हैं different चीज़ें जो आप लर्न कर सकते हैं जो chronic long term anxiety है उसमें आपने कैसे अपना thought pattern change करना है again depends on what you're dealing with okay तो जैसे ये पैनिक अटैक्स तो बहुत ही वो वाली कॉमन सी चीज़ लगती है मुझे क्योंकि हर मैं आजकल जो नई जनरेशन में देखती हूँ कि पैनिक अटैक ऐसे हो गए कि जैसे आपको छींकियाँ आ रही हैं यू नो every young child or it is stressful to be a young person definitely because मेरे भी but like I've raised 4 kids तो मुझे पता है कि ये होता है मगर how common it is to get the panic attack मतलब कितनी common और कितनी normal बात है कि कभी भी किसी को भी हो सकता है हर वक्त भी हो सकता है I wouldn't say it's I mean I guess वो normal की definition like sometimes people can really get it again I think वो बात ही आ जाती है कि frequency severity और आपकी फंक्शनैलिटी कितनी अफेक्ट हो रही है तो व्हाट आई वुड से इज कि एक चीज़ रिपीटेडली हो रही है आपकी लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है टाइम टू सीक हेल्प हाँ
ओके तो अगर हेल्प चाहिए हो लेट्स से तो आप सीधा आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या कि पहले जैसे अब वो तो होता है अगर आपने जैसे लेट्स से कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है आपको लगे को आपको हार्ट इश्यूज हो रहे हैं तो आपका तो जनरल फिजिशियन आपको रेकमेंड करेगा it's not like a one shoe, one size for everything. Different तरीके हैं, ऐसा कई जो लोग हैं वो ये भी देखना होता है कि खुद क्या चाहते हैं. So some people are like नहीं, no medication at all. Then of course psychotherapy is the only. I mean, so most of the time what helps is a combination treatment. अब आजकल कई दफ़ा जो थेरेपिस्ट हैं they work closely with psychiatrists, वो खुद refer कर देते हैं और a psychiatrist refers to a psychologist. So like either way, if you're going to a trained professional, they can tell you, okay, like you know, you need more help or you need to say both. For a lot of people, a combination works. मतलब वो it's not like an all or none कि जी आपने ये करना है या ये करना है. A lot of people try both, and that like it works simultaneously. Okay. So there are a lot of avenues for it कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है. But the important thing is at least starting it, doing something about it. think about it कि कुछ हो रहा है तो go and seek medical help. Yes. Right? अच्छा ये बताओ कि अपने पूरे longest career में कभी affect करती है आपको कोई session ऐसा कि कभी आपको खुद लग रहा हो कि like you know कि this is probably too heavy for me. But you know, you learn to cope with that. Like emergency psychiatry is hard, and that is why I try to do that part time. Although part time कहने को होता है. So basically, जैसा मैं आपको एक example दूंगी, like working with very young kids, that affects me, and that's why I decided जब मैं शुरू किया कि मैंने child psychiatrist नहीं बनना. फिर भी I end up seeing a lot of kids because इतना ज़्यादा shortage है. So like you know, knowing what you can deal with, what you cannot. I'm quite effective as an emergency psychiatrist because I know I'm good at decision making and like I can deal with those sort of intense cases. But again, जैसा आप किसी cardiologist के पास जाएंगे तो आप ये नहीं expect करते कि उसको heart attack हुआ होगा तो वो आपकी problem समझेगा. बिल्कुल. So psychiatry में what I would say is that, and for psychologists too, is important to focus on your own self-care as well. But just like any other job, there are a lot of other jobs that are very stressful too. हमारी job नहीं सिर्फ ये है, लेकिन I would say we are blessed in this way that we have more tools, like we can be more self-aware कि इसके बारे में आप stress को कैसे deal कर सकते हैं. Okay. तो मगर जैसे अपना stress दूर करने के लिए आप क्या करती हो? So I have a lot of hobbies. I absolutely love reading. I love going on walks and and I'm very interested in arts and crafts. So I do a lot of crafting too. तो वो help करता है आपको लगता है? Absolutely, absolutely. कि just फारिग दिमाग रखने से बेहतर है कि do something, yes, to relax yourself or Right, I mean it's a balancing act again. तो हम लोग सारे I think all of us are trying to find that perfect balance. हम at least हम कोशिश ही कर सकते हैं. But again, self-care or being self-centered, उसमें I just want to talk a bit. Self-care is only taking as much as you need. Okay. और unfortunately a lot of people जब आप उनसे बात करते हैं self care की वो समझते हैं कि नहीं तो बड़ी selfish बात है. Self centered होना ये होता है कि you're taking more than you need. I mean emotionally from people around you. तो self care is just कि जितनी आपको ज़रूरत है, just knowing, again वही बात आ जाती है ना कि being aware about yourself. बिल्कुल. But you know, if you are hungry, angry, lonely or tired, and I mean emotional hunger and emotionally being tired, you cannot really help anybody else out. जैसा वो प्लेन्स में भी वो पहले कहते हैं ना ऑक्सीजन मास्क में फर्स्ट पुट पहले खुद लगाओ. बिल्कुल. और बच्चों के लिए भी. And I think when it comes to moms, when it comes to women in general, this is the message I want to communicate. You have to focus on yourself. अगर आप ambitious हैं, आपकी drive है, own it. It's fine to be that. बिल्कुल. Even down the line, I think बात ये है कि resentment नहीं होनी चाहिए later on. So just being very aware, okay, this is important for me, letting the people around you know this is important for me, and then making an effort. Exactly. तो क्योंकि वो again कि जैसे वो again छोटी सी बात है कि जब हम like जब बच्चे छोटे थे और हम पहले joint families थी या सास से या सब साथ होते थे तो मुझे याद है कि मेरी मदर इन लॉ कहती थी पहले खाना खुद खाओ. Right. बच्चे को खिलाने से पहले खुद खाओ क्योंकि वो पता नहीं कितना टाइम लेगा. तो ये सेल्फ केयर भी वही चीज है कि लाइक अपना ख्याल रखो. अगर तुमने कुछ तभी आप डिलीवर वो कर सकते हो चीज कि अगर आप इफ यू आर खुद से अपने आप का ख्याल करके आप किसी और का ख्याल कर सकते हो. इस चीज में हमारी साउथ एशियन वुमेन बहुत ना इस चीज को निगलेक्ट करती हैं. वो इग्नोर करती हैं. लिटरली उनकी अपनी सेल्फ उन्होंने पीछे कहीं फेंकी होती है डब्बे में और वो उनको होता है कि लाइक मैं सबके लिए पूरी पड़ जाऊं कि मतलब बच्चे, हस्बैंड, घर, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड सबके लिए मैं पूरी पड़ जाऊं, मेरी खैर है.
कि वो मैंने ऐसी में कुछ दावतों में भी जाती हूँ, पार्टीज में भी जाती हूँ कि घर खाना Flavor हर हर कुछ कुछ, बहुत perfection परफेक्ट है, है। मगर वो उनके पास टाइम नहीं था अपने आप को तैयार करने के लिए। सही। तो मुझे बड़ा ना अच्छा नहीं लगता, खास के I पहले खुद agree, को I know तैयार this one करो। too. नहीं तो ये Exactly. इसके लिए क्या करना चाहिए, हम किस तरह अगेन से वही ये- वाली बात आ जाती है ना कि साउथ एशियन women are very generous by nature, Yeah. absolutely very generous, and जो अच्छी that बात है, which is a good beauty- thing. beauty of- लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना कि कहाँ generosity खत्म हो रही है और कहाँ पे you're being a doormat. और अगेन आई थिंक उसमें वही वाली बात है कि जब आपके अंदर एक chronic resentment आ रही है, then something is not right. Then you need to do something about it. बिल्कुल। Generosity है कि आपको भी खुशी हो रही है। जब आपकी खुशी खत और कभी कभी ठीक है, यू हैव टू डू मोर, लेकिन ये कंसिस्टेंट बेसिस पे इफ यू फील लाइक यू आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ और आप खुद फुलफिल नहीं हो रहे तो देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। और वो फुलफिलमेंट भी आई थिंक उनको प्रॉब्ली करंट सिनेरियो या करंट सिचुएशन में नहीं आती है, उनको फुलफिलमेंट का एहसास होता है बहुत आगे जाके, लाइक काफी 10-15 साल गुजर जाते हैं कि जब शायद कुछ भी उनके पास नहीं होता, तब उनको होता है कि लाइक कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा सा अपना ख्याल किया होता, कि मैंने इतना टाइम निकाला होता, बिकॉज मैं इतनी बिजी थी हर चीज़ करने में, बच्चे संभालने में या Right. घर को प्रॉपर परफेक्ट Right. रखने में, कि मैंने खुद को बिल्कुल इग्नोर किया। That's okay. वही वाली बात जो आप एशियन मॉम्स आर नोटोरियस कि हम इतने बच्चों में इतने इन्वेस्टेड होते हैं और फिर उसमें ये भी हो जाता है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप लेटर इन लाइफ बिल्ड हो जाता है जब बच्चों को जरूरत है कि वो अपनी लाइफ पे फोकस करें, तो फिर हैविंग दैट एक्सपेक्टेशन कि वो आपके ऊपर इतना बिल्कुल। फोकस करें, दिस नॉट, क्योंकि आप ओनर तो नहीं है ना आप उनके। ओनर नहीं है उनके, तो फिर वो रिजेंटमेंट बिल्ड होती जाती है। तो वो वही बात आ जाती है गोइंग बैक टू कि बैलेंस रखना, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखें अपना पहले ख्याल ताकि रखो। आप दूसरों का रख सकें। और अगर अभी भी नहीं रख रहे तो अब रखना शुरू कर दो। अगर It's अभी never भी too लगता है, late. इट्स नेवर टू लेट, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं अपना ख्याल। Exactly, अपनी absolutely. सेल्फ केयर इज रियली इंपॉर्टेंट। It is. तो उसके लिए योगा, वर्कआउट, ईटिंग आउट, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स एंड It makes a lot of difference Difference, क्योंकि we are mammals, we are social creatures। और जो आप risk factors की बात कर रही थी, मेरे नज़दीक वही वाली बात है कि जिन भी आप कंट्रीज में देखें जहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है, वो वही वाली बात है कि when people don't feel lonely, they have good social and meaningful relationships। बिल्कुल। जो superficial social media relationships हैं या like if you know 500 people but you don't really know them, कोई फायदा नहीं उनका। और हर एक का फर्क होगा। फर्क some होता है, people are more social, some people are less social, तो just and that's okay। कई लोग we need all kinds of people। लेकिन again आप जहाँ अपने आप को इस स्टेज पे लाना कि आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं और आप दूसरों के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। और नहीं, आई थिंक वो भी पॉइंट वही अगेन कि अब मुझे 40 के बाद पता चला। Oh, I'm in the same boat क्योंकि कि like मुझे पहले नहीं workaholic पता, होना- मुझे लग रहा था कि कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लोग चाहिए, आई एम अ पीपल पर्सन, मुझे सिर्फ अराउंड अपने लोग चाहिए। मगर अब मेरा बहुत ही वो हो गया है इस स्टेज पे आके लाइफ के फ्यू इज इनफ फॉर मी, जो बेस्ट वाले हैं तो वो मेरे पास हैं एंड दैट इज Right. जब मेरी अब वो भूख लोगों की खत्म हो गई है। खत्म हो गई। हाँ, अब खत्म होगी। अब ना जैसे कि अब नहीं देखिए, आपको आप लगता है कि अब आप यू आर filled, आपका heart is filled with like few Right. people, very close circle and Right. that is it। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आई थिंक आपके माइंड को बहुत रिलैक्स रखता है और मेंटल हेल्थ के लिए अगेन एट द सेम Right. टाइम कि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि यहाँ कहाँ तक आपकी भूख है, बस उतना ही चाहिए। and I think 40 के बाद ये भी होता है ना कि आपकी expectations reset हो जाती हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि who is the right friend for us, but I think 40 के बाद usually for most of the people you realize कि you can just work on yourself, like you can become the person और फिर then you can have what you want in your relationships when you're first working on yourself। बिल्कुल, हाँ, कि पता हो कि वो अगेन कि अगर अपने साथ टाइम गुजारेंगे तो पता चलेगा आपको क्या चाहिए। You said it beautifully, अपने साथ टाइम गुजारना। हाँ। Most of the people are not able to। बिल्कुल। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच जाए, like my sister was telling me कि अगर आप खाना अकेले खा सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में और मूवी अकेले देख सकते हैं तो that's आप उस लेवल पे आप मतलब you like company but you आप बिल्कुल, उस लेवल पे हाँ, पहुंच सकते कि हैं। आपको अपनी कंपनी आप एंजॉय कर रहे हैं और या अपने आप को जान गए और आप अपने फ्रेंड बन गए, तो अब आपको पता है कि कौन आपके लिए Right. सही है और कौन आपके लिए गलत Exactly. है ना? ये कितनी प्यारी बात है वैसे। Exactly। तो ये इसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगी सबको कि क्या किस तरह से आप अपना ख्याल रखें एंड अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और इवन अपनी सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखें, और थोड़ा सा अगेन कि इस बात को डिस्कस करें कि अगर आपको लग रहा है कहीं आपको लग रहा है कि आपका कोई डार्क माइंड में कहीं डार्क एरिया है या वहाँ आप लाइट नहीं, खुद भी नहीं आप डालना चाह रहे लाइट, आप इग्नोर करें, यू आर जस्ट कीप पुशिंग दैट
सोच अवे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं comes बिल्कुल back to ठीक हूँ। bite you. हाँ ना, और फिर वो कभी आपको हॉन्ट करता है, फिर आप कहते हैं नहीं 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 कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप कोई मैसेज दो सबको कि इट्स ओके, आप बात कर सकते हैं उसके बारे में। Sure. What I would like to say is that self-care is going to be different for everyone. This मैं अगर करती हूँ तो like I like to read a lot and of course दूसरे इंसान के लिए वही stressful बात हो जाएगी. मेरे लिए So you have to look at what works for you as a person. हाँ. और जहाँ तक seeking help की ज़रूरत है, जो मैंने usually देखा है कि लोग वेट करते हैं, if they start feeling better, they start ignoring the problem again. बिल्कुल। So for most of these things, it's a process. अगर आप ठीक भी हो गए हैं, you still need to process that. ताकि आपके coping skills बेहतर हों, you learn how to adapt, you learn how to deal with that. वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती usually. तो उसके लिए ये कि आप ध्यान दें उस सोच को और अपनी जो भी whatever you're feeling, just talk about it. But talking with the right person in the right context. राइट पर्सन कहाँ से ढूंढें आप? कौन आपको, हाउ डू यू नो दैट हु इज द राइट पर्सन? That is a good question, and unfortunately, mental health providers का अभी भी काफ़ी shortage है. But you know, I'm seeing a trend. Like I used to know a lot of Muslim psychiatrists. During the pandemic, I see a lot of people, young Muslim men and women, going into psychology too. So I think people are recognizing the need for it, especially in our community. So there's definitely a change. That's wonderful. That's wonderful. वैसे तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपसे पूछनी है, जो मुझे पता है उसके लिए हमें एक और एपिसोड के लिए इनको बुलाना पड़ेगा रबाब को। एक लास्ट चीज़ मुझे ये बताओ कि जैसे अब मैंने बहुत सारे यंग लोगों में देखा है कि ड्रग्स का यूज़, अल्कोहल नहीं कर रहे मगर हैश कर रहे हैं या वीड कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि कहीं वो भी, और हुक्का भी कर रहे हैं, ठीक है, टबैको तो जा रहा है ना अंदर, तो वो आपको लगता है कि वो दैट कैन बी अ एंग्जाइटी ट्रिगर और थोड़ा सा आपको कहीं लेके Absolutely. I'm glad you brought that up because that is a problem. और खास तौर पे हमारी community में there's such a hush about it. Again, drug use. Don't think of that as a weakness. Usually what we call ACE, adverse childhood events, usually trauma होता है, जो again it goes back to unprocessed traumas. That is a big risk factors. और usually जब आपकी life में stable relationships नहीं होते, there's sort of like a substitute for people, unfortunately, which is a bad substitute. अब आजकल मसला ये हो रहा है कि जैसा even for cannabis, very potent strains are coming out. So I'm seeing a lot more और psychosis कैनबिस with को तो it. बहुत नॉर्मल कर दिया है, मतलब एक नॉर्मल से भी नॉर्मल कर दिया है। बहुत डेंजरस बात पे हम जा रहे हैं, और जैसा फेंटेनिल है, कई दफ़ा बच्चों को पता भी नहीं होता वो कौन सी पिल ले रहे हैं, लेकिन वो इवन लाइक what you can fit on a tip of a pencil can kill you. Oh my So it's really unfortunate. But again, वही वाली बात है कि try to communicate with your kids. That's the only way to do it. एक shame based culture में उसके अच्छे solutions नहीं होंगे। नहीं है, और लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही बुरे हैं, राइट? कि अगर आप नहीं सोच रहे, क्योंकि मैंने अब ये कैनबिस और ये वीड वगैरह इतनी नॉर्मल हो गई ये चीज़ कि एवरीबडी, इवन पेरेंट्स आर ओके, उनको पता है कि ओह अच्छा वो वीड कर रहा है, या शराब तो नहीं पी रहे ना एटलीस्ट, या अल्कोहल तो नहीं पी रहे। More research is coming out. So like personally, because मैं उसके इतने adverse effects देखती हूँ, तो अब वो कह रहे हैं कि जी बैक एक, भाई वो यंग बच्चों को कहाँ से इतनी बैक एक होगी कि उनको बिल्कुल, हाँ, कि चाहिए, लिटरली जॉइंट्स के लिए भी, इन सब के लिए डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि इफ इट्स राइट और I रॉन्ग। mean, what I would say is कि आपको नहीं पता कि आपको क्या मिल रहा है जब तक ये इंडस्ट्री और रेगुलेट नहीं होती, and but again having clear communications with your kids, just trying to make sure you have a healthy lifestyle, your kids have a healthy lifestyle, and also knowing कि ultimately एक आ जाता है स्टेज कि उसके आगे you have to let the kid decide. मतलब आप जितना कर सकते करते हो, अगेन बाउंड्रीज, जस्ट नोइंग कि ठीक है मैंने इतना कर लिया, अब एक इंसान ने अपनी लाइफ के बारे में खुद डिसीजन हाँ, कि 30 इयर्स का बच्चा तो बच्चा नहीं है ना, वो तो आपकी बात नहीं सुन रहा ना, राइट, मगर वो and the way the communication is done will not be helpful. Exactly. हाँ, और वो फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो अगेन प्रॉब्ली वो नेगेटिव इफेक्ट्स जरूर उसके आ सकते हैं टुवर्ड्स देयर रिजेंटमेंट हो सकती है टुवर्ड्स अगेंस्ट पेरेंट्स एंड ऑल, मगर आप कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। Sometimes, unfortunately, you have to wait for somebody to hit their rock bottom before, because the first thing what we do is there's no point. I always ask people like, what do you think? Do you think it's a problem? अगर उनका ख्याल नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जितना भी बोलती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट? तो फिर इस किस्म की सिचुएशन में आप क्या करें? जाने दें, जो कर रहे हैं करने दें उनको।
No, I mean, you can be supportive. You can just talk about the avenues. Again, not forcing anyone, just letting them know, okay, you know, I'm there for you. Just जितना आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, अगर वो हेल्प सीख करना चाह रहे हैं, then being supportive, helping them with the process. Okay. क्योंकि वो अगेन की हेल्प भी वो तभी मांगी अगर उनको लग रहा होगा कि कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस चीज को कि उनको भी नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि इट्स ओके, इट्स नॉट गोना हार्म मी, और मैं एज लॉन्ग एज आई एम फंक्शनिंग फाइन, मेरी डेली रूटीन में या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो इट्स ओके अगर मैं कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ. It's amazing to see कि इंसान कितना डिनाइल में जा सकता है ना? about what's actually happening. अभी एक और लास्ट बात इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मतलब एक और अगेन एज आई सेड अर्लियर एज वेल कि बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं बातें ख़त्म करूं, मगर एक और चीज़ कि अभी मैं किसी फ्रेंड के पास गई तो वो मुझे बता रही थी कि उसके फादर वाज उनके वही अगेन कि वो हॉस्पिटलाइज थे और उनको बहुत सारे वो एंग्जाइटीज़ हो रही थी एंड ही वाज गोइंग थ्रू लेकिन लॉट्स ऑफ मेडिकल कंडीशंस एंड ऑल, तो वो कोई होम्योपैथ की मेडिकेशन लेते थे जस्ट टू काम हिमसेल्फ डाउन. तो वो हॉस्पिटल गए, वो ही वाज एडमिटेड एंड ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पूछे बगैर आप उनको कोई मेडिकेशन नहीं दे सकते और होम्योपैथ की वो साथ रख के भी नहीं गए थे. तो उनकी बेटी ने उनको बोला कि मैं आपको वो ड्रॉप्स दे रही हूँ. ही वाज लाइक एंग्शियस कि मुझे वो मेरा चाहिए दवाई बिकॉज मैं नहीं सही फील कर रहा. तो उसने कहा मैं आपको दे रही हूँ एंड इसने शी सेड द नेम ऑफ द मेडिसिन एंड कहा कि ओके मैंने इसके ड्रॉप्स या 2-4 व्हाटएवर डाल दिए एंड ही ड्रैंक दैट वाटर एंड लिटरली ही काम डाउन. तो ये कैसे होता है? मुझे नहीं पता उन ड्रॉप्स में क्या था. ड्रॉप्स नहीं डाले उसने, कुछ नहीं डाला. अच्छा, प्लासिबो इफेक्ट, दैट्स अ नोन इफेक्ट. प्लासिबो इफेक्ट होता है जैसा वो तभी स्लीप हाइजीन के लिए भी कहते हैं ना कि आप अपनी रूटीन रखो कि ऐसे ऐसे करो, लाइक एक्सरसाइज एट दिस टाइम. सो रूटीन्स हेल्प करती है ना इंसान को. तो प्लासिबो इफेक्ट इज अ नोन थिंग, वो हो जाता है. और सो आई थिंक दैट्स व्हाट यू वर आस्किंग अबाउट. एज फार एज के taking supplements and all of that is concerned, I'm wary of that because you know things can interact. आपको नहीं पता कि आपको क्या potency जा रही है. So you really need to know what you're doing. Medications अगर आप लेते हैं, please always know क्या आप डोज ले रहे हैं, कौन से मेडिसिन ले रहे हैं. लुक अप द साइड इफेक्ट्स. सो यू नीड टू बी अवेयर कि आप ले क्या रहे हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. कलर्स याद करने से उससे नहीं फर्क पड़ेगा. यू एक्चुअली नीड टू नो. क्योंकि वो अगेन कि आप इतना सेल्फ डायग्नोज पे आप बिलीव करते हो, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ टू, कि आप आधी चीज़ें तो आप खुद अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हो, यू नो, कि अगर which again I think वो डेंजरस बात फिर है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता है ना कि लाइक जस्ट डॉक्टर गूगल is not a real doctor. So उसमें I think उस पे फोकस करने के बजाय फोकस हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि आपको एक मेडिसिन मिली है, knowing that आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, being self aware rather than जो डायग्नोसिस का पार्ट है. ठीक है, आपका ख्याल सही हो सकता है, लेकिन जिस self medication is a dangerous thing. I have to say that. And self diagnostic as well कि आप हमारी कम्युनिटी में सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन, और इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. कोई एक लास्ट मैसेज आप देना चाहोगी सबको, लाइक जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि एक कोई लास्ट ऐसा मैसेज जो बिल्कुल जिसमें हम एंड कर सकें, कोई एक प्यारी सी बात फॉर एवरीबडी. What I would say is that आजकल जो हालात जा रहे हैं, all of us are stressed out. ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या कर सकता है? We can learn to focus on ourselves. हम अपने आप को कैसे काम रखें, अपने बच्चों पे फोकस करें. So you know we are all in this together. And I think looking at the positives, there are nice people around us, or just being grateful for that, being thankful for that. Wonderful. Thank you so much. Thank you for watching. I hope आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी और आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा इससे, और अगर नहीं हुआ तो बार बार देखें और सोचें कि कुछ ना कुछ तो अच्छी बात हमने की होगी यहाँ बैठ के. Thank you so much for watching. Please subscribe, like and share. Till the next time. Bye bye.